Bismillahirrahmanirrahim. First of all, of course, I'm thankful to the organization for providing me the opportunity to address honorable faculty members on this very important topic. Particularly, I am thankful to Malik Amanullah Saab to invite me here. And of course, it's very nice to see Dr. Ashfaq Saab here after some time. I was expecting him to see at Mansua, but yesterday I was told that he has joined here, so it's really nice. So the assignment that has been given to me is to talk on the writing research proposals. So there may be some of the concepts which may not be new for you people, but of course I'll try to make the things very clear and make the things more explicit. And of course, I would also like to learn from your side as well, particularly after the presentation when we'll be having interactive session. So, writing research proposals. So first, what is the significance of research in universities? Why we need to do research at universities? So first, because it contributes to the scientific advancements. If you look around the globe, whatsoever the important discoveries, the important breakthroughs have been made, those started from one or the other university. It's generally the universities which play a significant role in the scientific advancements. And of course, when they play a role to the scientific advancement, automatically they are contributing to the global knowledge. So the research being carried out at universities is contributing ultimately to the global knowledge. And of course, it provides opportunities to the students to learn new techniques, to equip themselves of modern and latest technologies, concepts, ideas, which they can then apply in the field. So that's why research is important at universities, and whenever you mention any university, the next question will be what sort of research is being carried out at that university. So one of the recognition of the university is from the standard, the quality, and the quantity of research being conducted at that university. So, starting from the research, of course, it is the research which enables the person to have a sort of funding from which he need to do the research on any aspect. He need not to worry about the funds. Whatsoever generally in the universities, what we do is we generally supervise the students and we try to allot him or supervise him on the work which is already going on in the lab. If we need to do something new or something not real novel, we need funds, which particularly in the government sector, of course, are lacking. So for that purpose, these are the research proposals which help to do that research. And it of course advances, if you find some research funding, it advances scientific knowledge, and successful research projects contribute to the advancement of scientific knowledge and understanding. And of course, it promotes innovation. As I said earlier, because it is the research funding that motivates you to think innovatively and to think whatsoever the idea comes to your mind, to try to explore that idea. You are not stopped from due to the constraints of financial issues. Whatsoever you think comes to your mind, you feel is doable, you straight away go and start doing work on that. And of course,
when you do some research, it also focuses on solving the problems of the society. So ultimately, it benefits the society as well. Then, from where you can get the funding, the competitive funding, that may be from the funding agencies, like the government agencies. In Pakistan, the important ones are Pakistan Science Foundation, Higher Education Commission, Punjab Agriculture Research Board, Agriculture Linkages Programs, and many international programs as well. And then, of course, there are many foundations which also support research in specific areas, like Bill and Melinda Gates Foundation, Grand Challenges, and many other foundations which also have their specific areas where they do the research. And of course, one very important is the industry partnership. Industry also likes to have a research on their specific issues particularly. So, in the foreign countries particularly, the industry, they come with their problems to the universities and ask them, this is the issue, we need its solution. You have to do research on that and give us the solution. So it is a very important aspect, that is the industry academia linkages. So the industry also provide funding opportunities according to their requirement. How you can identify the relevant funding sources? How you can identify that I should apply to this particular source? So for that purpose, you need first to see the research area. Means you need to focus on funding opportunities aligned with your research area. आप उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें फंडिंग के लिए जो उस एरिया में काम कर रही है, जो आपके रिसर्च एरिया के साथ मैच करता है. अगर आप एग्रीकल्चर के हैं तो किसी एग्रीकल्चर की ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करें. अगर आप एटॉमिक एनर्जी के हैं तो किसी एटॉमिक जो उस किस्म का काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, उस किस्म की फंडिंग करती है, उनको आप फोकस करें. सो सबसे पहले आप ये देखें कि अपने रिसर्च एरिया के मुताबिक you need to identify the funding agency according to your research area. Then the specific focus. There are many organizations which have a specific focus or specific research question, such as some organizations are doing research on cancer. So you should, if you are working on cancer, you should try to knock at the door of that particular organization. Maybe climate change, these days it is very important to get funding in the climate change, and of course any educational issue. Then the eligibility criteria, this is very important. You need to evaluate yourself and look at the requirement or the call for proposals from the funding organization, and before starting writing the proposal, you need to evaluate yourself whether you are eligible. They might have asked that a person should be PhD. You are not PhD, so you should not submit proposal over there. Or, for example, they say that particular person can apply who has this much experience. You don't have that much experience. So you must see the eligibility criteria for the scientist who can apply for funding. Then you should apply to that particular organization. And then, of course, the timeline, whatsoever the timeline they say, for example, they say we can fund only for 1 year. You have a work or a proposal which definitely will take 3 to 4 years. Then you should not apply to them. You should apply to them, or vice versa. If you have a small duration, but they say no, you have to work for this much year. So timeline, you have to take into consideration the timeline of, or the similar example is, for example, they say you submit a proposal of 5 years, but you are retiring from a government organization after 2 years. So that may be an issue for you to get that proposal.
Although there may be some alternatives, but they may have an objection that you are retiring after 2 years, then who will be running the proposal? So you must take into consideration the timeline also. So then briefly, when you craft a compelling research proposal, you need to have a clear and concise writing. I will discuss these in detail later on. So clear and concise writing. You should have a strong justification and a well-defined research plan and expected outcomes and impacts. So when you are crafting or developing a research proposals, these are the important questions or the important aspects that you need to address. And when you are giving your project objectives and methodology, you need to take into consideration while outlining your project objectives, the specific objectives, to the point, crystal clear point, what is your objective. इधर उधर की बातें नहीं, clear cut point हो कि ये काम है मेरा, ये target है. So outline the specific and measurable research objectives you aim to achieve through your project. Then research methodology, describe the research methods, data collection techniques, data analysis methods, and any relevant ethical considerations. And of course, the project timelines. Provide a detailed timeline outlining the key milestones and deliverables of your research project. This is just, I am giving a summary. Later on, I'll discuss these in detail. So, highlighting expected outcomes and impacts. उस प्रोजेक्ट में आपको हाईलाइट करना है कि आपकी एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगी या उसका इम्पैक्ट क्या होगा. तो उसमें you need to give your scientific advancements, how your project will contribute to the scientific advancement, how it will result in social benefits, and how it will be having its practical application, whether it will just a bookish research, or it will be solving certain problems, or it will have an applied nature project. And while preparing the proposal, there may be some challenges. So how you can mitigate those challenges, how you can come across or how you can meet those challenges. For example, there is limited access to resources. You are preparing a proposal, but you have no access to the say literature, or you want to do some particular analysis, but that particular instrument is not available with you. So to solve such issue, you should collaborate with institutions or organizations that have the access to necessary facilities or the resources. Then unexpected data challenges. So particularly in the social sciences, they must be ready for an alternate source of a data analysis, that if whatsoever they have thought, if that particular analytical technique is not applicable or due to one or the other reason is not giving proper results, then you should be able to have some alternate source of analysis. And of course, ethical considerations. If you are doing, say for example, you are doing some social sciences research on getting data from hepatitis patients, then there are certain ethical considerations. You will not disclose their information, how you will collect the samples, like that. So you must take into consideration. For that, you must approach that particular ethics committee at your institute and get proper permission and information or guideline from them for preparing that proposal. And these days, when you apply to HEC for some proposal, they need such certificate from the ORIC. So ORIC provides them a certificate that this work falls within the ethical guidelines of the institute.
So when you have prepared the proposal, then you, what will be the best practice while submitting the proposal? One is you must stick to the deadline. जो भी deadline है उसमें उसको submit कर दें. Proof reading, उसको carefully उसकी proof reading कर लें और उसका format जो आपको कहा गया है उसको prepare कर लें. So, and the conclusion or the next steps is, जैसे मैंने पहले कहा कि उसको थॉरोली रिव्यू करें. आपने प्रपोजल बना लिया, उसको थॉरोली एक दफ़ा रिव्यू कर लें कि आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी हैं, कोई टाइप ऑफ मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई और इशू तो, मैथडोलॉजी ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी थी वो सारी आपने दे दी है. उसके बाद सीक फीडबैक फ्रॉम योर सीनियर्स, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम योर पीयर्स. गिव हिम दैट प्रपोजल and ask him to read for you. Once, if he gives you some suggestions, you can incorporate those suggestions before submitting. And of course, try to submit it well within the deadline of that proposal. And of course, you must be hopeful that when the proposal is well crafted, it will be having very good chances of winning that grant. So this was the brief, you can say the gist of my talk, what I am going to talk now. So how do you establish your credibility? So this is very important aspect, that when you submit a proposal, you must have a credibility, and establishing a credibility needs a time. ये नहीं होता कि आज आपने जॉब स्टार्ट की है तो आज ही आपकी एक credibility develop हो जाएगी. You have to work hard for that. Then you are known for your authority in that particular work. जैसे कल भी मैं बात कर रहा था, अब किसी ने पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस की बात करनी है तो वो फ़ौरन आइडेंटिफाई करेगा, ओके डॉक्टर अमानुल्लाह साहब को अप्रोच करें. ठीक है. सो अपने अपने एरिया के मुताबिक बंदे की एक क्रेडिबिलिटी डेवलप होती है. तो एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर और while preparing the proposal, how you have to establish your credibility. First is present yourself as a capable, knowledgeable, and forward thinking. And establish your credibility through the thoroughness of your plan. ये नहीं हो कि आपने कुछ चीज़ें उसमें दी हों, कुछ दी ना हों. आपने काम करना हो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिक्र ही ना हो सारी प्रपोजल में. So that will establish your credibility. That will not establish your credibility, will discredit you कि इस बंदे ने तवज्जो से नहीं बनाई है प्रपोजल. So then reference, this is very important. Generally हमें ये कॉन्सेप्ट ये है, हम कहते हैं इस फंडिंग एजेंसी से मैंने ये काम किया है, अब दूसरी फंडिंग एजेंसी को अप्लाई करना है तो उसका जिक्र ना करें. ये ना वो कहें ये तो इसने पहले ही कर लिया है. नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए. अगर आपने पहले कुछ काम किया है तो दैट इज़ ए प्लस पॉइंट. यू मस्ट मेंशन कि जी इस फील्ड में मैं ऑलरेडी ये काम कर चुका हूँ और अब इसको मैं आगे एडवांस लेके जाना चाह रहा हूँ, या इसमें मैं ये चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Any past accomplishments appropriately reference करें उनको, that verify your commitment ability to succeed. ठीक है. इवन आजकल आप HEC की प्रपोजल सबमिट करते हुए देखते होंगे, वो आपसे एक पेज पूरा लेते हैं कि जो प्रोजेक्ट अब तक आपने किए हैं उन पे एक पेज लिख के दें कि आपने उसमें क्या किया है, क्या अचीव किया है. सो दैट इज़ टू एस्टैब्लिश योर क्रेडिबिलिटी. जिस रिव्यूअर के पास जाएगी वो उसको देखेगा, उसको पता चलेगा कि आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, आपने क्या काम किया है, क्या एक्सपीरियंस है आपका, क्या आपकी स्पेशलाइजेशन है, क्या आपकी सीरियसनेस है. एंड देन आउटलाइन एनी पार्टनरशिप यू हैव बिल्ट विद कंप्लीमेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स. दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि अगर मैं कोई ख़ास एनालिटिकल टेक्निक यूज़ करना चाहता हूँ, वो इंस्ट्रूमेंट मेरे पास नहीं है, मैं चाहता हूं कि वो इंस्ट्रूमेंट मैं से GC यूनिवर्सिटी से यूज़ कर लूं, तो मैं उनके साथ कोलैबोरेट डेवलप करूं और वो मैं अपनी प्रपोजल में लिखूं कि जी मैंने ये वाला काम इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके करना है. सो दीज आर द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ग्रांट प्रपोजल. दैट इज़ द शॉर्ट ओवरव्यू, एग्जामिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, description of
your project and other sections sometimes required. इनको हम one by one अभी discuss करते हैं. So, short overview, also known as abstract or executive summary of your proposal. So, it must be short and precise, ranging from one paragraph to one full page. बल्कि अब आजकल कंप्यूटर के दौर में तो उन्होंने वर्ड्स भी लिमिट कर दी हैं कि इतने वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. वो लॉक कर देते हैं, आप उतने पेज से उतने वर्ड से ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं तो वो आगे लिखता ही नहीं है. So you must prepare that summary according to that requirement. अगर वो कहते हैं 200 वर्ड्स की तो फिर 200 वर्ड्स की ही लिखें. और आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं तो वो समरी आप पहले बना लें, बाद में ऑनलाइन उसको पेस्ट कर दें. अगर आप वहाँ पे ही लिखना शुरू करेंगे तो आप यहाँ ज़्यादा पेजेस की और ज़्यादा वर्ड्स की लिख के वहाँ पे पेस्ट कर देंगे और वहाँ पे काटने की कोशिश करेंगे तो यू मे बी डिलीटिंग सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम दैट समरी. सो उसको थॉरली अलहदा से बना के अच्छी तरह से बैठ करके उसके वर्ड्स देख के फिर उसको वहाँ पे पर्टिकुलर परफॉर्मा पे ऑनलाइन आप पेस्ट कर दें. देन ईदर वे मेक श्योर दैट यू कैन आंसर. उसमें आपने वो समरी इस तरह से बनानी है कि वो इन क्वेश्चंस का जवाब दे रही हो. क्या है वो? व्हाट इज द पर्पस और गोल ऑफ योर प्रोजेक्ट, राइट? वो समरी ये बताए कि इसका पर्पस क्या है. व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड हाउ विल यू अचीव देम. How will you assess or verify the success of your project? And why is your project important? And briefly, who are you? ये चीज़ें आपको एग्जेक्टिव समरी में देनी चाहिए. ठीक है. Then comes इसी में some granting institutions may also want you to clarify in the summary the kind and amount of funding और अदर सपोर्ट यू आर आस्किंग फॉर. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट होती है कि वो आप उसमें बता दें. फॉर एग्जांपल एक आप बड़ा काम कर रहे हैं कोई किसी और ग्रांट में, उसमें कोई छोटा सा कंपोनेंट है जिसके लिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग लेना चाहते हैं, तो आप उनको कहें, बता दें कि जी मैं ये फंडिंग सिर्फ इस पोर्शन के लिए मुझे चाहिए या इस पर्टिकुलर काम के लिए, या आपसे एनालिटिकल वर्क किया. आप कहते हैं जी मैं एक बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ जिसमें मैंने इतने सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं, उन सैंपल के एनालिसिस के लिए मुझे फ़लाँ जगह से ये फैसिलिटी अवेल करनी है, उसके लिए मुझे फंडिंग चाहिए. सो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये चाहती हैं कि आप वो बता दें कि वो आपको फंडिंग किस चीज़ के लिए चाहिए अपनी समरी में. Then you might even want to incorporate key terms and concepts from the organization's mission statement into your summary. मैंने शुरू में बताया था वो जब समराइज कर रहा था कि जब आपने ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करनी है तो उसमें उसका अपना रिसर्च एरिया देखें कि उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव देखें वो क्या कर रहे हैं. तो जो उनका रिसर्च एरियाज हैं, जो उनके कीवर्ड्स हैं, उनमें से कुछ लफ्ज़ लाजमी अपनी एग्जेक्टिव समरी में लिखें. That will attract the reviewer, that will attract the funding organization. कि ये तो बड़ा भाई ठीक है, ये तो हमारे बिल्कुल गोल्स में फिट इन हो रहा है, वो लाजमी आप लिखें. जैसे अब आजकल फॉर एग्जांपल ये SDGs का बड़ा इशू है, हर कोई कह रहा है जी SDGs पे फोकस करें जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे. तो आप पहले ही लिख दें मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ये इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एड्रेस करेगा. While the summary or abstract may be the first element of your finished proposal, it is often best to write it last. So it is generally suggested कि इसको आप एंड पे लिखें, क्योंकि इसमें आपने सारे की जिस्ट देनी होती है, समरी देनी होती है. सो जैसे हम पेपर में ये एडवाइस करते हैं कि जब आप रिसर्च पेपर लिखें तो एब्स्ट्रैक्ट एंड पे लिखें, इसी तरह से इसमें भी बेहतर ये है कि आप पूरी प्रपोजल लिख लें, उसके बाद ये वाला पोर्शन लिखें जो आपकी समरी है. देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज द एग्जामिनेशन ऑफ ए नीड और प्रॉब्लम, आल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ नीड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, नीड असेसमेंट और लिटरेचर व्यू.
मुख्तलिफ फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस मुख्तलिफ लफ्ज़ यूज़ करती हैं, सो उसके मुताबिक आप उसको यूज़ करेंगे। योर प्रोजेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज it is responding to a gap in resources, knowledge or opportunity that really needs to be filled. So जो भी problem है, if you want to work on that, first you need to explain that clearly what work has been done in that particular area and what is the missing link or what is the gap in that where you want to focus. Or what is the problem for which you want to do some research to find the solution to that particular problem. So you must focus on that while explaining the problem. And in order to establish the value of your project, you need to clarify the need or problem that your project responds to. उसको क्लियरली करें कि जी मेरा ये प्रोजेक्ट क्या करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर डिजीज़ है, कोविड है, चलें कोविड के दिन हैं तो आप कोविड पे फोकस करना चाह रहे हैं, तो आप कहें जी कि दिस प्रोजेक्ट विल फोकस ऑन डेवलपिंग ए प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट कोविड और फॉर ए ट्रीटमेंट अगेंस्ट कोविड। सो आप उस स्पेसिफाई कर दें उसको अपने उसमें जो भी आपका प्रॉब्लम है जिसका आप सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे हैं, या आप कोई टेक्नोलॉजी बनाना चाह रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसको एक्सप्लेन करें क्लियरली कि ये वाला मेरा पर्पस है। अर्ली इन योर प्रपोजल मेक श्योर दैट यू एस्टैब्लिश द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज़ द बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड बताएं। जैसे मैंने अब कोविड का बात किया है तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि जी ये कोविड इस तरह से शुरू हुआ है, इतना फैल रहा है, ये है, तो इसमें इस बैकग्राउंड में ज़रूरत है कि कुछ ऐसे मेजर्स अडॉप्ट किए जाएं कि इसकी स्प्रेड को रोका जा सके। सो मैं एक मेजर पे काम कर रहा हूँ कि मैं ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनाना चाहता हूँ कि अगर आप उसको यूज़ कर लेंगे तो कोविड फैलने से रुक जाएगा। जैसे मैं कहूँ जी मैं यहाँ पे एक ऐसा फ़ैन डेवलप कर रहा हूँ कि इस कमरे में मैं वो लगा दूँगा कि जो भी एयर बाहर से आएगी वो उसके थ्रू होके आएगी, लिहाजा वो यहाँ पे जो भी उसमें जर्मीसाइडल इफेक्ट होगा, एक मिसाल दे रहा हूँ कि वो यहाँ पे कोई भी अगर वायरस है तो उसको ख़त्म कर देगी। सो उसको आपको पूरा बैकग्राउंड दे के बताना चाहिए कि ये उसकी सिग्निफिकेंस है। दिस एग्जामिनेशन मे टेक the form of a short literature review clarifying that you have read extensively on this topic. So ये जो आपका पोर्शन है नीड ऑफ प्रॉब्लम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ये एक किस्म का लिटरेचर रिव्यू होगा जिसमें आप बताएंगे कि ये काम इस पे हो चुका है। जैसे आप लिटरेचर रिव्यू में गैप आइडेंटिफाई करते हैं एंड पे जाके कि जी ये काम हो गया है और अब इसमें ये काम मैं करना चाह रहा हूँ, तो उसको क्लियरली आप आइडेंटिफाई करें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैंने एक बैक्टीरियल हर्बिसाइड डेवलप करना है, तो मैं कहूँगा जी हर्बिसाइड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वीड्स ये नुकसान करती हैं, तो उसके अगेंस्ट ये हो सकता है कि आप मैकेनिकली कर लें, केमिकली कर लें या बायोलॉजिकली कर लें। मैकेनिकल के ये नुकसान हैं, केमिकल के ये हैं, सो फिर बायोलॉजिकल अप्रोच ज़रूरी है। बायोलॉजिकल अप्रोच में ये कुछ हो सकता है, इनमें से किसी ने अब तक बैक्टीरिया पे काम नहीं किया, सो मैं अब बैक्टीरिया पे काम करना चाह रहा हूँ। सो इस तरह से पूरी स्टोरी डेवलप करके वो जो गैप है, जो कनेक्शन है, वो आपने डेवलप करना है वाइल डेवलपिंग योर स्टेटमेंट ऑफ नीड और द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एंड why will this project make a wider positive impact and not just how it will answer a specific academic question? ये आपने उसमें डिस्कस करना, जैसे मैंने अभी मिसाल दी है, पूरा डिटेल बतानी है आपने कि ये सिर्फ एक एकेडमिक क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करेगा बल्कि एक पूरे इशू को एड्रेस करेगा। ये फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप केमिकल हर्बिसाइड यूज़ करेंगे तो ये होगा आपकी इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाएगी, आपके ये जो वीड्स हैं वो उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है। सो उन सब को सॉल्व करना है थ्रू बैक्टीरियल। ये नहीं है कि आप एक एकेडमिक क्वेश्चन है जी सिर्फ कि ये जी बैक्टीरिया कंट्रोल करते हैं, दैट्स इट।
पूरी एक बैकग्राउंड बना के आपने पूरा उसको हल करना है, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उससे इम्प्रेस हो कि हाँ भाई ये तो वाकई कोई बहुत ही यूनिक और बड़ा अजीम काम हो रहा है. So how will you measure or recognize your project's achievements? You need to mention that. कि आप कैसे मेजर करेंगे कि हाँ जी मेरे प्रोजेक्ट से कुछ निकला है, कोई आउटपुट आई है. क्या आप कोई एंड पे आप कोई हर्बिसाइड डेवलप करेंगे, क्या आप एंड पे कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, या आप सिंपली बस ये कह देंगे कि हाँ जी ये बड़े यूज़फुल होते हैं. सो आउटपुट क्या होगी आपको बतानी है कि मैं यहाँ से सैंपल लूँगा, उन सैंपल का ये एनालिसिस करूँगा, उसके बाद उनमें से एफिशिएंट स्ट्रेन्स ढूंढूंगा और फिर उन एफिशिएंट स्ट्रेन्स को मैं यूज़ करूँगा फॉर डेवलपिंग ए प्रोडक्ट. व्हाट विल बी दी टाइमलाइन ऑफ योर प्रोजेक्ट, ये भी आपको बताना होता है उसमें कि आपकी टाइमलाइन क्या होगी, कैसे आप करेंगे. मैं आगे जाऊँगा तो इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा. Several of these questions focus on the impact of your project will have. So ये सारे क्वेश्चन अल्टीमेटली आपके प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट को डिटरमिन करेंगे कि कितना इम्पैक्ट होगा उसका. ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट. अब उसको डिस्क्राइब करना है. इसको कुछ फंडिंग एजेंसीज प्रोजेक्ट नैरेटिव कह देती हैं, कुछ प्रोजेक्ट गोल्स कह देती हैं, ऑब्जेक्टिव्स कह देती हैं, एंड मेथोडोलॉजी और स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स. कोई भी नाम यूज़ किया जा सकता है, हर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना यूज़ करती है. सो फॉर दिस पोर्शन मेक श्योर यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस. क्या, व्हाट आर द गोल्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, क्लियरली उसमें अपने प्रोजेक्ट के गोल्स लिखें. व्हाट विल योर प्रोजेक्ट्स आउटकम बी, आउटकम बताएंगे क्या आउटकम होगी. मैं एंड पे आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें ये सारे मैं करके दिखाऊंगा. हाउ आर यू गोइंग टू अचीव दोज आउटकम्स, आप वो आउटकम्स कैसे हासिल करेंगे. एंड व्हाट मेथड्स विल यू यूज़, आप क्या मेथड्स यूज़ करेंगे वो आउटकम्स हासिल करने के लिए. देन वेरी इंपॉर्टेंट बजट, कुछ में ये रिसोर्सेज भी कह देते हैं, कुछ फाइनेंशियल एस्टिमेट्स कह देते हैं, कोई भी नाम यूज़ कर लें, चीज़ वही है कि आपने ये बताना है कि आपको पैसे चाहिए. सो सिंस यू आर आस्किंग फॉर फंडिंग और अदर सपोर्ट, you need to clarify just what you are asking for and why you are asking for particular amounts. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने ये बताना है आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए. ठीक है. And budgets are often formatted in tables and figures, and each amount should be clearly labeled, and you might need to directly follow your budget with a justification statement explaining why each cost, material and equipment is valid, reasonable and important for your project. For example, मैंने कहा हर equipment, this is very important component of your proposal. You need, शुरू में हमने बात कर ली कि आपको क्रिस्टल क्लियर करना है अपने जहन में अपनी प्रोजेक्ट की आउटलाइन को कि आप करना क्या चाहते हैं. उसके बाद जब आप बजट बना रहे हों तो जो आपने आउटलाइन बनाई है, जो आपने एक्टिविटीज़ बनाई हैं, इसको आपके बजट को उसके साथ अलाइन होना चाहिए, उसके साथ कोरिलेट करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी प्रपोज़ल में लिखते हैं कि मैंने जी ये जो प्रोडक्ट बनाई है इसमें हैवी मेटल्स मौजूद हो सकते हैं तो मैं उनका एनालिसिस करूँगा. और आप अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें इंस्ट्रूमेंट लिखते हुए आप हैवी मेटल एनालिसिस के लिए इंस्ट्रूमेंट लिखने की बजाय आप कोई और इंस्ट्रूमेंट लिख देते हैं. उसके लिए आपको अगर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन चाहिए तो आप कहते हैं जी मुझे तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफ चाहिए. तो जो इसका मतलब है रिव्यूअर होगा, एवेल्यूएटर होगा, वो फ़ौरन गैस करेगा इसका मतलब है इसका होल्ड नहीं है सब्जेक्ट पे, इसको पता नहीं है. जैसे वो मुझे याद आ गया, हमारे एक टीचर होते थे, वो डॉक्टर शाह मोहम्मद, वो कहते थे हमें क्लास में, कहते एक बच्चे से उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई अच्छा ये क्या है, उसने कहा जी ये फ़लाँ है. उन्होंने कहा नहीं ये ऐसे ही है जैसे एक बकरी खड़ी हो, आपसे पूछा जाए ये क्या है, आप कह दो ये भेड़ है, तो इसका क्या मतलब है.
इसका मतलब है आपको बकरी का भी नहीं पता, आपको भेड़ का भी नहीं पता। सो यू नीड टू बी वेरी क्रिटिकल वाइल प्रिपेयरिंग योर बजट। इसको बिल्कुल अलाइन होना चाहिए आपकी एक्टिविटीज़ के साथ। जो काम करना चाहते हैं, आपने प्रोजेक्ट में लिखा है कि मैंने सारे पंजाब का सर्वे करना है और वहाँ से जाके मैंने सैंपल्स कलेक्ट करने हैं और फिर उनका एनालिसिस करना है, लेकिन आप उसमें ट्रैवलिंग के पैसे ही नहीं रखते प्रोजेक्ट में, तो आप सैंपल कैसे कलेक्ट करके लेके आएंगे? या आपने सैंपल कलेक्ट नहीं करने हैं, लैब से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन पैसे आप रख लेते हैं कि मैंने फील्ड ट्रायल करने हैं, हालांकि आपकी प्रपोजल में फील्ड ट्रायल्स हैं ही नहीं। सो इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। जो पैसे आपने मांगे हैं उनको जस्टिफाई करना है, और ऑफ कोर्स यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड, वो कहते हैं जी कि आप अगर कोई परमानेंट आइटम मांगना चाहते हैं, कोई इक्विपमेंट मांगना चाहते हैं, तो दैट शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। अगर प्रोजेक्ट से फॉर एग्जांपल 1 लाख का है तो 20,000 से ज़्यादा का प्रोजेक्ट नहीं आप इंस्ट्रूमेंट नहीं मांग सकते। सो इस चीज़ को आपको टेक केयर करना है। कुछ इसी तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि ये आपका ऑपरेशनल बजट टोटल बजट का इतने % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो इन चीज़ों को आपको टेक केयर करना है, और ये चीज़ें आप उस पर्टिकुलर कॉल से, उस पर्टिकुलर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की जो डिटेल्स होती हैं वहाँ से, उनकी गाइडलाइन से मिलेंगी कि आपने अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से। कुछ कहते हैं जी फॉर एग्जांपल आप जी इसमें बिल्डिंग नहीं मांग सकते, आप इसमें व्हीकल नहीं मांग सकते, आप कह देते हैं मुझे 2 गाड़ियाँ दे दें, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा कि ये हमने इन्हें कहा भी है कि व्हीकल नहीं लिखनी है, फिर व्हीकल लिख रहे हैं। सो इन चीज़ों को टेक केयर करना है आपने, और ये कैसे होंगी कि पहले आप उन गाइडलाइंस को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद प्रपोजल बनाएं। सो नब इस सारी डिस्कशन को सामने रखते हुए मैं एक सैम्पल प्रपोजल अब आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरी अपनी ही प्रपोजल है जो मैंने पार्ट को सबमिट की थी, कि ये एक प्रपोजल है जी कि डेवलपमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स फ्रॉम एंडोफिटिक एंड फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन वीट क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसमें इनकी रिक्वायरमेंट है कि इन्होंने कुछ थीम्स दिए हुए हैं अपनी साइट पे, अपनी जो ये कॉल देते हैं उसमें आपको मेंशन करना होता है कि आपका प्रोजेक्ट किस थीम में फॉल कर रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि ये उनका थीम है, मैंने कहा कि ये इस थीम में फॉल कर रहा है। उसके बाद उन्होंने सब थीम भी दिए हुए हैं, तो मैंने सब थीम भी दे दिया। पहला क्या मैंने कहा जी प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट होगी। ठीक है, फिर मैंने कहा जी ये कॉटन वीट सिस्टम में फॉल करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनके उससे देनी है। इसी तरह से कोई फंडिंग, ये पार्क वाले उन्होंने तो इस तरह थीम दिए हुए हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एरियाज़ देती हैं, वो कहती हैं जी प्रोजेक्ट्स चाहिए हमें क्लाइमेट चेंज में, एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में, या इन्वायरमेंटल साइंस में, इरिगेशन पे, वो बता देती हैं कि इन एरिया, तो आपने उन्हीं एरियाज़ के मुताबिक प्रपोजल बनानी है। से फॉर एग्जांपल अब ये आपकी एक्सपर्टीज़ होती है कि अगर आपका प्रोजेक्ट डायरेक्ट रिलेट नहीं करता है तो खींच तान के उसको जैसे भी है फिट इन करना है उसमें, लेकिन साबित करना है आपने कि ये जी इसमें फिट होता है। सो देन आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, इसमें हमने 2 कंपोनेंट रखे हैं, तो मैंने दोनों कंपोनेंट्स के ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं कि पहले में वो हर्बिसाइड डेवलप करेंगे, दूसरे में हम टेस्टिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे उसकी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जो कोलैबोरेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी डिटेल दी जाती है। ये सारी उनके परफॉर्मे के मुताबिक है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम दिया जाता है। अब उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं कि कौन प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, कौन टीम मेंबर हो सकता है, ये सारी आपको उनकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इसको फॉलो करना होता है।
ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट ड्यूरेशन वो महीनों में पूछते हैं तो आप महीनों में लिखें, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कमेंसमेंट डेट पूछते हैं, और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट है, ये कॉमन चीज़ें हैं, ये उसमें आप लिख देते हैं। उसके बाद ये है जी वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। अब देखें उन्होंने इसमें सब हेडिंग्स दे दी हैं, हम वहाँ डिस्कस करके आए हैं कि आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ें देनी हैं। इसमें आप देखें उन्होंने आपसे पूछा है प्रॉब्लम टू बी एड्रेस्ड, इसमें आप वो बताएंगे। मैंने इसको काट दिया है ना, आगे से पूरा पूरा नहीं दिया, जस्ट टू सेव टाइम एंड आल्सो टू सेव स्पेस हेयर। उसके बाद दूसरा हमने कवर किया है रेलेवेंस ऑफ द प्रोजेक्ट टू द प्रॉब्लम टू बी एड्रेस्ड। पहले आपने प्रॉब्लम बताया, अब जो प्रोजेक्ट आपने बनाया इसका रिलेशनशिप उसके साथ दिया, और फिर उसके बाद आपने उसकी बेनिफिट्स दी, और बेनिफिट्स में उसने आगे पूछ लिया है जी कि इसकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्वांटिटेटिव टर्म्स में बताएं, और इसकी सोशल बेनिफिट्स बताएं, इसका लिटरेचर रिव्यू प्रेफरेबली इन द लास्ट 5 ईयर, ये उनकी रिक्वायरमेंट है पार्क की कि आपने 5 साल को रिव्यू करना है सिर्फ। और उसके बाद प्रोजेक्ट रिलेटेड अचीवमेंट्स एंड रिसर्च इन हैंड इफ एनी, जो मैं कह रहा था कि जो आपका काम है आपने ऑलरेडी किए हुए वो ज़रूर मेंशन करें। देन ऑफ कोर्स जो आपने ऊपर रेफरेंसेस यूज़ किए हैं उनके आप रेफरेंसेस दे देंगे। देन दिस इज़ द प्रोजेक्ट प्लान, जिसमें आपने अपनी मेथडोलॉजी देनी है। तो साइंटिफिक मेथडोलॉजी में आपने पूरी डिटेल देनी है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आइसोलेशन आपने की है, एफिशिएंसी उनकी टेस्ट की है, फिर आइसोलेशन ऑफ पी सॉल्युबलाइजिंग की है, उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स मेजर किए हैं। इसमें मैंने कल भी एक बात की थी, एक ऑफ द रिकॉर्ड टिप ये कि इसमें डिटेल देनी चाहिए लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ रोक भी लेनी चाहिए, नहीं भी देनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप 100% डिटेल दे दें कि दूसरा बंदा उसको रिप्रोड्यूस कर सके, इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली एथिकली हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं हैं। तो मे बी आपका रिव्यूअर के पास या जैसे भी किसी बंदे के हाथ वो लग जाए प्रोजेक्ट, ऊपर से वो नाम चेंज करे, अपना नाम लिख के उसको कर ले। सो इसलिए वो जैसे कल भी हमने ये बात की थी कि जैसे बिल्ली ने शेर को दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया था, सो इसलिए उसमें कोई ना कोई चीज़ आप ज़रूर रख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेथडोलॉजी है तो आप ये बता दें मैं इस टेक्नोलॉजी को, इससे आइसोलेशन है, शायद कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट बैठे हों, आप ये कह दें कि जी मैं डाइल्यूशन प्लेट टेक्निक यूज़ करूँगा। ये ना बताएं कि मैंने कितनी डाइल्यूशंस करनी है, कौन सा मीडिया यूज़ करना है, ठीक है, कितनी दफ़ा स्टिकिंग, इतनी डिटेल ना बताएं उसको, ताकि अगर कोई करना चाहे तो उसे चले, अगर वो करना ही है तो वो कम से कम आपसे पूछे तो सही। ओके, देन सो ये आपको डिटेल बतानी है उसकी मेथडोलॉजी की। वो सारी जो कुछ आपने करने हैं उसका बेहतर होता है कि आप उसका की थीम या प्रिंसिपल बता दें मेथडोलॉजी का जो आपने यूज़ करनी है। आपने से फॉर एग्ज़ाम्पल से फॉस्फेटेज एक्टिविटी मेजर करनी है तो आप बता दें कि मैं ये सबस्ट्रेट यूज़ करके इसकी जो भी ये वाली करके ये वाला कलर डेवलप होगा उसको मैं ये मेजर करूँगा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली, दैट्स इट, दिस इज़ द प्रिंसिपल। बस आप प्रिंसिपल बताएं, वो डिटेल नहीं बताने की ज़रूरत होती कि इतने ml वो लूँगा, इतने ml वो लूँगा, इतने, ये चीज़ें आप उसको अवॉइड करें। वैसे भी इतनी डिटेल दी नहीं जा सकती प्रोजेक्ट में, इतनी जगह भी नहीं होती। वो सारे ये सारा वो मेथडोलॉजी है। उसके बाद आपको ईयर वाइज प्लान देना है और ये बड़ा सोच समझ के देना है। वो दैट शुड बी इन लाइन विद द एक्चुअल फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने एक प्रोडक्ट डेवलप करनी है जिसमें मैंने बैक्टीरिया यूज़ करने हैं, लेकिन बैक्टीरिया आइसोलेशन आप कहें मैं जाके एंड पे करूँगा तो बात नहीं ना बनेगी। आप कहें मैंने वीट की ग्रोथ इंप्रूव करनी है, उस पर टेस्ट करना है वीट ग्रोथ पे फील्ड में जाके, वो क्रॉप तो लगती है अक्टूबर नवंबर में, और आप कह दें मैंने एक्टिविटी प्लान में आप कह दें कि जी ये तो मैंने करनी है जून जुलाई में,
तो जो आपका रिव्यूअर इवेल्युएटर होगा वो समझ जाएगा कि इसका मतलब इसको पता पुता कोई नहीं है, ऐसे ही बुकिश ही है, इसने इधर उधर से देख के लिख दिया है। सो इस चीज़ को ख्याल करना है। सो अपनी एक्टिविटी ईयर वाइज प्लान को आपने और एक तरतीब से चलना है। जैसे ये जो मैं आपको प्रोजेक्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें मैंने टाइटल बताया था कि फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग एंडोफिटिक बैक्टीरिया को यूज़ करने हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए बायोफर्टिलाइज़र। तो उसके लिए तरतीब से चलना है जी। मैं पहले आइसोलेट करूँगा, फिर उनकी स्क्रीनिंग करूँगा, फिर उनको लैब में टेस्ट करूँगा, फिर उनको फील्ड में लेके जाऊँगा, ठीक है। और लैब में टेस्ट के लिए मैं डिफरेंट मेथड्स यूज़ करूँगा, फिर फील्ड में मैं डिफरेंट मेथड्स यूज़ करूँगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट आएगी वो इन सारी स्टेजेस से गुजर के आएगी। सो एक सीक्वेंस में, एक तरतीब में चलना है आपने। ऑफ कोर्स उसमें प्रोजेक्ट में उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपने कोलैबोरेशन किया है किसी के साथ तो उसका भी बता दें, किसी फॉरेनर के साथ है तो उसका भी बता दें। और ये वो पूछते हैं कि कमर्शलाइजेशन एंड बेनिफिट टू द एंड यूज़र्स क्या होगी आपके, आप कैसे कमर्शलाइज करेंगे उस प्रोडक्ट को, ये आपने बताना। मैं थोड़ी सी बात आगे जाके करूँगा इसकी। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, तकरीबन हर फंडिंग एजेंसी आपसे गैंट चार्ट पूछती है। वही जो मैंने पहले कहा कि आपने एक्टिविटीज़ प्लान की हैं कि साल में किस तरतीब से कौन सी एक्टिविटी करनी है, उसी को इस चार्ट में शो कर दिया आपने। कौन सी, जैसे आप देखें ये कंपोनेंट 1 है, उसकी आउटपुट कौन सी है, और उस आउटपुट से आउटपुट ये है कि मेरे पास 20 आइसोलेट्स मौजूद होंगे। ये मेरी आउटपुट है कि मेरे पास 20 आइसोलेट्स हैं। और उसके लिए पहले मैंने क्या करना है जी, मैंने जी सैम्पलिंग करनी है। किन महीनों में करनी है ये उनको मैंने इंडिकेट कर दिया है, ठीक है। फिर मैंने जी उनकी स्क्रीनिंग करनी है जी, फिर मैंने जी उनकी टेस्टिंग करनी है जी, फिर मैंने उनकी फर्दर टेस्टिंग करनी है जी। ये जिस तरह से आपने वहाँ पे एक्टिविटीज़ लिखी हैं उसी हिसाब से इसको मंथ वाइज आपने ये चार्ट डेवलप करना होता है, हर एक्टिविटी के अगेंस्ट, हर आउटपुट के अगेंस्ट। This is another very important thing, that is the milestone matrix जो हमने प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें हमने देखा। तो ये है ओवरऑल प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। ये जनाब अचीवमेंट इंडिकेटर्स हैं। हमने कहा था कि आपको बताना है कि क्या इंडिकेटर्स होंगे कि ये डिटरमिन हो सके कि ये इसमें कुछ निकला भी है, ठीक है। ये है उसका रिस्क अगर कोई इन्वॉल्व है, ये उसकी एग्जैक्ट डेट आपने गैस करनी है कि कब वो ख़त्म होगी। मतलब एग्जैक्ट डेट से मुराद महीना आप दे सकते हैं। अब ये नहीं कि 24/12 को, इतनी डिटेल नहीं देने की ज़रूरत, महीना कम से कम बताना होता है। कौन सा साइंटिस्ट इस एक्टिविटी को कर रहा होगा, उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन होगी, और उस एक्टिविटी पे कितने पैसे लगे होंगे, कितने पैसे लगेंगे। तो उस हिसाब से आपने ये पूरा जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी की बात ले लेता हूँ। ये अब है डेवलपमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ बायोहर्बिसाइड फ्रॉम एंडोफिटिक एंड फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो अचीवमेंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बायोहर्बिसाइड फ्रॉम दीज। इसमें हमने कहा था ये हमने बनानी है। तो अचीवमेंट क्या होगी कि वो बन जाएगी जी, प्रोडक्ट एंड पे एक प्रोडक्ट अवेलेबल होगी। रिस्क कोई नहीं है इसमें ये कंप्लीट हो जाएगी। और इन जनरल टोटल जो प्रोजेक्ट का बजट होगा वो इसमें होगा, क्योंकि ये ओवरऑल प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव दिया है यहाँ पे। उसके बाद कंपोनेंट 1 का ऑब्जेक्टिव दिया है कि क्या होगा, उसकी सारी एक्टिविटी आउटपुट के हिसाब से उस ऑब्जेक्टिव में कितनी आउटपुट्स होंगी, 3, 4, 5, हर आउटपुट के लिए कितनी एक्टिविटीज़ करेंगे आप, ठीक है। और हर एक्टिविटी का इसी तरह से आपने बताना होता है। जैसे इसमें हमने ये बताया है एक्टिविटी 1 में कि इसकी अचीवमेंट इंडिकेटर क्या होगा, और कौन बंदे ये करेंगे, और कितने पैसे इस पे लगेंगे। ये सारा इसी की बेस पे बाद में आपकी मॉनिटरिंग होती है कि वो फिर आपसे इस डेट के मुताबिक आते हैं प्रोजेक्ट की फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले, और आपसे वो सामने रखते हैं ये माइलस्टोन मैट्रिक्स, और आपसे पूछते हैं ओके जी ये आपकी एक्टिविटी 1 आपने करनी थी, तो इसकी ये आउटपुट थी, तो ज़रा दिखाएं आपने क्या ये कर ली है।
तो उस हिसाब से वो इवेल्युएट करते हैं यस और नो। या बाज़ का आपसे कहा जाता है कि माइलस्टोन मैट्रिक्स के मुताबिक अपनी रिपोर्ट बना के भेज दें, तो फिर आप लिखते हैं यस ये कर लिया है मैंने, ये कर लिया है, ये कर लिया है। इस तरह से सारी आप पूरा माइलस्टोन मैट्रिक्स डेवलप करेंगे उसका हर एक्टिविटी के अगेंस्ट। उसके बाद प्रोजेक्ट के स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स आप बताएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि आपको फंडिंग एजेंसी की रिक्वायरमेंट्स को देखना है, उनकी इंस्ट्रक्शंस को देखना है। वो कहते हैं कि जी अगर आपने एमएससी ऑनर्स बंदा रखना है तो उसकी इतनी सैलरी है, तो आपने उतनी ही लिखनी है जो उन्होंने अलाउ की है। अगर वो कहते हैं अब इसमें भी आपने देखना है फंडिंग एजेंसी क्या कहती है। एचईसी कहती है कि आप स्टूडेंट को एज रिसर्च एसोसिएट हायर कर सकते हैं, सो आप कर सकते हैं। पार्ब कहता है नहीं जी फुल टाइम बंदा हायर करना है आपने, स्टूडेंट नहीं हायर कर सकते, तो फिर आप उस स्टूडेंट को ना हायर करें उसमें, ठीक है। और जितनी उन्होंने बता दी है कि इस क्वालिफिकेशन वाले को इतनी सैलरी आप देंगे, उतनी ही सैलरी आपने बजट में लिखनी है। इसी तरह से कोलैबोरेटिंग ये देखें, ये होस्ट इंस्टीट्यूट और ये कोलैबोरेटिंग इंस्टीट्यूट मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था कि इस प्रोजेक्ट में ये सैम्पल दे रहा हूँ जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हमने कोलैबोरेट की हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और IUB। ये फिर बजट की समरी है। आप देखें इसमें सिर्फ समरी है, सैलरीज, ऑपरेटिंग इक्विपमेंट और ओवरसीज ट्रैवल टोटल अमाउंट्स बता दी गई हैं, ठीक है। आप डिटेल में देखेंगे सैलरीज जहाँ आएगा वहाँ फिर डिटेल दी होगी कि अच्छा ये सैलरीज किसको देनी है, कितनी देनी है, वो सारी डिटेल होगी। ये समरी है उसकी, ठीक है। ये कंबाइंड प्रोजेक्ट की समरी है, ये कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 की है, ठीक है। और ये अब आपने पार्ब की रिक्वायरमेंट है कि आप इंस्टॉलमेंट्स भी बताएंगे उन्हें कि जी इस टाइम पे मुझे इतने, पहली इंस्टॉलमेंट में इतने पैसे चाहिए, दूसरी में इतने चाहिए, तीसरी में इतने चाहिए। और ये आपने इंस्टॉलमेंट्स अपनी एक्टिविटी प्लान को देख के बनानी है, ठीक है। कि अगर आपको इक्विपमेंट से पहले ही साल में चाहिए तो आप पहली ही इंस्टॉलमेंट में लिख दें कि जी इक्विपमेंट के पैसे इसमें रिलीज़ कर दें। अगर आप समझते हैं नहीं वो तीसरे साल में है तो फिर उसको दूसरे या तीसरे साल में ले लें। उस हिसाब से उसको आप करें। ये उनका भी एक ख़ास फार्मूला है कि वो जो इंसेंटिव है वो कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट देना होता है कि ये जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं ये किसी और प्रोजेक्ट से फंड नहीं हो रही हैं, तो ये आप कर देते हैं। ये देखें, ये डिटेल्ड बजट है। अब इसमें देखें जो सैलरीज़ हैं उस सैलरीज़ में लिखा है कि रिसर्च एसोसिएट को इतनी तनख्वाह पर मंथ मिलेगी, टोटल एक साल में इतने, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, चौथे, पाँचवें टोटल इतने बन जाएंगे। इसमें डिटेल दी है। वहाँ पे हमने सिर्फ ये वाला टोटल दिया था कि सैलरीज़ के इतने पैसे होंगे, ठीक है। इस तरह से सारी डिटेल है ये एक। और फिर जो मैंने पहले कहा था कि जो इक्विपमेंट आपने मांगना है मांगें, लेकिन उसको जस्टिफाई करें प्रॉपरली। जैसे इसमें हमने 2-3 चीज़ें मांगी हैं तो उसको हमने जस्टिफाई किया है कि ये क्यों चाहिए हमें। इवन अगर ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी है, आप उससे कोई लेटेस्ट लेना चाहते हैं या आपका पुराने वाला ख़राब है, नो प्रॉब्लम, आप मेंशन कर दें उसमें कि जी ऑलरेडी हमारे पास है लेकिन उसमें ये इशू है, इस वजह से हम उसे अपग्रेड करना चाहते हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आपका प्रोजेक्ट से मलिक साहब का प्रोजेक्ट है, मेरे पास इवैल्यूएशन के लिए आ गया, मुझे पता है इनकी लैब में तो ऑटोक्लेव है, ये फिर उसमें ऑटोक्लेव लिखेंगे तो मैं लिखूंगा जी ये इंस्ट्रूमेंट्स तो ऑलरेडी इनके लैब में अवेलेबल हैं, क्योंकि नॉर्मली जिनके पास इवैल्यूएशन के लिए जाना है वो आप ही में से होते हैं, हम ही में से होते हैं, आपके सीनियर दोस्त पीयर्स ही होते हैं जो उनको इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। उन्हें जनरली पता होता है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे HEC वो आपसे पूछता है कि जी बताएं आपके पास फैसिलिटीज़ हैं कौन कौन सी और मांग कौन कौन सी रहे हैं आप। अगर कोई चीज़ आपके पास है, आप उसका लेटेस्ट वर्जन या पुराना हो गया है या उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है वो लेना चाहते हैं तो उसको जस्टिफाई करें। और वो मैंने बात पहले ही कह दी है कि वो आपकी एक्टिविटीज़ के साथ मैच करना चाहिए, अलाइंड होना चाहिए। अगर आपने कोई न्यूक्लियर काम ही नहीं करना है, इंस्ट्रूमेंट ऐसा मांग रहे हैं जो न्यूक्लियर चीज़ों को मेजर करता है,
से रेडिएशन को मेजर करता है तो वो जस्टिफाई नहीं करेगा। सो ये उसके कोलैबोरेटर का बजट है, ये उनकी जस्टिफिकेशन है। नाउ लास्ट इज दी प्रोजेक्ट बन गया, अब जनाब आपने बना लिया, अब वो किसी ने एवेल्युएट भी करना है। तो ये जो बातें हमने की हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये मैंने प्रोजेक्ट प्रपोजल इवेल्युएशन परफॉर्मा दिया है। क्योंकि मैंने सैम्पल पार्ब का दिया तो मैंने परफॉर्मा भी उन्हीं का लिया है। सो आप जब प्रपोजल सबमिट करेंगे तो वो फिर आपके पीयर्स में से किसी सीनियर बंदे के पास जो उस फील्ड का एक्सपर्ट होगा उसके पास जाएगी इवेल्युएशन के लिए, साथ उसको ये परफॉर्मा जाएगा जिस पे उसने वैल्यूएशन करनी है। अब आप देखें जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो सारी वही बातें हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें इसमें पहला क्वेश्चन है कि इन द रिसर्च प्रोजेक्ट रेलेवेंट टू द इज द रिसर्च प्रोजेक्ट रेलेवेंट टू द एडवर्टाइज प्रोजेक्ट ग्रुप फॉर सर्टेन थीम्स। क्या ये जो थीम्स उन्होंने एडवर्टाइज किए थे उनके मुताबिक है? ये इवेल्युएटर ने इसमें यस और नो लिखना है। दूसरा उनका क्वेश्चन है डज द इंस्टीट्यूशन पोजेस नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर टू अंडरटेक एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इसमें भी यस नो लिखना है। और नीचे देखें उन्होंने कहा है कि इन ऊपर वाले दो क्वेश्चंस में से अगर किसी का जवाब भी नो है तो आप आगे प्रोसीड ना करें, इसका मतलब स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो गया। अब याद करें मैंने कहा था अगर कोई फैसिलिटी आपके पास नहीं है तो किसी को कोलैबोरेटर रख लें साथ जहां पे वो फैसिलिटी हो, तो इस तरह से यहां से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज वो कह देगा इनके पास तो है ही नहीं ये फैसिलिटी, तो वो नो कर देगा, आगे वो वैल्यूएशन होगी ही नहीं फर्दर, यहीं से वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर मैंने कहा था जैसे भी है खींच तान के उसको फिट करना है उनके थीम्स में, अगर वो उनके थीम्स में फिट नहीं होता तो यहीं से नो हो जाएगा वो। अब ये आपकी एक्सपर्टीज होंगी, आप उसे कैसे फिट इन करते हैं। ओके, फर्ज करें वो यहां से निकल गया, अब उसके बाद उन्होंने हर चीज को अलग-अलग पूछा है। वो कह रहे हैं जी प्रॉब्लम डेफिनेशन, इसमें वो क्वेश्चन है इज द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड क्लियरली स्टेटेड। हमने बार बार कहा था जी क्रिस्टल क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्रॉब्लम क्लियर करें कि क्या करना है आपने, जिसका सोल्यूशन ढूंढना है। और उसके देखें 10 पॉइंट्स हैं, उसमें से पॉइंट्स उसने लगाने हैं और साथ में नीचे उसके जो भी कमेंट्स होंगे यहाँ पे वो कमेंट्स लिखेगा आपने, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, डज द प्रपोजल एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोविंशियल और नेशनल इंपॉर्टेंस। मैंने वहां पे कहा था कि आपने बताना है कि ये क्या करेगा, ये कोई मसला हल करेगा या नहीं करेगा, तो ये वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अब रिव्यूअर से कि आपने जनाब इनकी प्रपोजल देख लिया, अब बताएं क्या ये कोई मसला हल करता है। 15 में से उसको नंबर दें और नीचे अपने रिमार्क्स दें, उसको एक्सप्लेन करें आपने ये क्या नंबर दिए हैं, क्यों दिए हैं। आप बताएंगे कि जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को इस प्रपोजल से सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद ये देखें क्वेश्चन है डज द प्रपोजल एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोविंशियल नेशनल। ये वही वाला दोबारा आ गया क्योंकि उसको कट पेस्ट किया है, उसके पोर्शन किए ना, एक पेज था तो उसको जरा बड़ा करने के लिए किया है। तो तीसरा क्वेश्चन था विल द प्रोजेक्ट बी ए वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इट्स पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी। क्या उसकी कोई कंट्रीब्यूशन होगी। अब टोटल देख ले, इसमें 10 में से नंबर लगाएगा वो वैल्यूएटर, तो साथ में अपने कमेंट्स देगा। Has previous published work reviewed and taken into account। देखिए सारी वो चीजें जो हमने अभी डिस्कस की हैं वही पूछ रहे हैं उससे कि क्या इसने रिव्यू किया है प्रीवियस वर्क को, उसमें से 10 में से नंबर देंगे वो। फिर आपसे पूछा जाएगा उससे इवैल्यूएटर से, रिव्यूअर से, कि प्रोजेक्ट रिलेटेड रिसर्च अकम्प्लिश्ड और इन हैंड। क्या कोई रिसर्च है जो इससे रिलेटेड उसने पहले से की है। हमने वहां कहा था कि जरूर रेफरेंस दें उसका कि मैंने जी ये काम कर लिया हुआ है पहले से, और उसमें नंबर लगाएगा जो इवैल्यूएटर है और उसके साथ भी मार्क्स देगा। तो ये इस कैटेगरी में से उसके 55 में से टोटल नंबर बन जाएंगे जितने भी बनेंगे, ठीक है। उसके बाद
रिसर्च मैथडोलॉजी, ये ऑब्जेक्टिव्स ये गोल्स में थे। उसके बाद है रिसर्च मैथडोलॉजी, बी कंपोनेंट है। इसमें देखें क्वेश्चन पहला क्या है, इज द रिसर्च प्लान ऑप्टिमल फॉर द प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव। जो आपका ऑब्जेक्टिव है, प्लान आपका उसके मुताबिक भी है। कह रहे हैं आप मैंने काम करना है बैक्टीरियल पे, और मैथडोलॉजी सारी आपने फंजाई की दी हुई है। यहाँ आपने डेवलप करनी है बायो फर्टिलाइजर, और बायो फर्टिलाइजर का कहीं जिक्र ही नहीं है आपकी प्रपोजल में। सो ये आपसे पूछा जा रहा है, रिव्यूअर से पूछा जा रहा है, इज द रिसर्च प्लान ऑप्टिमल फॉर द प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव। 10 में से नंबर लगाएगा वो। कैन द प्रपोज्ड एक्टिविटीज डिलीवर टारगेटेड आउटपुट्स। क्या इन एक्टिविटी से जो वो करना चाह रहा है वो मिलेगा। Are the costs and time frames reasonable and is the choice of equipment appropriate। मैंने कहा था ना कि आपको जस्टिफाई करना है, वो आपकी जस्टिफिकेशन यहां काम करेगी। जैसे मैंने कहा था कि आपने करना जो डिटरमिन करना है उससे रेलेवेंट इक्विपमेंट मांगना है, कोई और नहीं मांगना है, तो यहां पे वो बताएगा। और फिर दूसरी बड़ी चीज इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी प्रपोजल बनाने से पहले उसका कुछ स्पेड वर्क करना होता है। आपने अगर कुछ इक्विपमेंट मांगनी है ना, तो ऐसे ही ब्लाइंडली उनकी प्राइसेस ना लिखें। बेहतर है किसी वेंडर से रब्ता करें, उससे पूछ लें कि भाई ये कितने का आता है, उसे कहें मुझे इसकी एक कोटेशन भेज दो, और वो फिर आप कुछ फंडिंग एजेंसीज तो कहती हैं साथ लगा दें वो कोटेशन, अदरवाइज उसकी प्राइस कोट करें। हम अब बाज़ का हमारे पास खुद भी आती हैं प्रपोजल्स इवैल्यूएशन के लिए, हमें सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट करनी पड़ती हैं। बंदा कहता है मैंने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लेना है 2 लाख का। अब हम उस पर काम करते हैं, हमें पता होता है 2 लाख में तो उसने उसका मॉडल भी नहीं बताना है कि कौन सा मॉडल है ये, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि इसने एस्टिमेट्स इसके रियलिस्टिक नहीं है। सो ये उससे वैल्यूएटर से पूछा जा रहा है कि जो इक्विपमेंट इसने मांगे हैं वो जस्टिफाइड हैं, जो बजट इसने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ का मांगा है वो जस्टिफाई करता है। जैसे अभी मैंने मिसाल दी थी कि फील्ड में आपने जाना नहीं है और POL के आपने पैसे रख लिए हुए, फील्ड ट्रायल आपने करना नहीं है और फील्ड में जाने के पैसे रख लिए हुए। सो इनको अलाइन होना चाहिए। उसके बाद है जी इंस्टीट्यूशनल एंड साइंटिस्ट कैपेबिलिटीज, ये इवैल्यूएट करता है जो रिव्यूअर होता है। उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इज द रिसर्च टीम इंक्लूडिंग PM, एक्सपर्ट्स एंड कोलैबोरेटर्स ऑफ सफिशिएंटली हाई कैलिबर। आप एक तो आपने CV लगाया होता है, दूसरा आपकी एक स्टैंडिंग होती है फील्ड में, वो आपका पीयर आपका ज़ाहिर है। अब अगर हॉर्टिकल्चर का है तो किसी हॉर्टिकल्चर वाले के पास ही जाएगा ना, वो जानता है कि इस बंदे की ये एक्सपर्टीज है। बल्कि इसमें बास का तो ये होता है फंडिंग आपकी, हमने कहा था कि क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करनी है। बास का तो आप इतने क्रेडिबल होते हैं अपने उस फील्ड में कि फंडिंग एजेंसी खुद आपको अप्रोच करती है कि ये प्रॉब्लम है या ये इशू है, हमें इस पे एक प्रपोजल बना दें। फॉर एग्जांपल आजकल गवर्नमेंट कहती है उन्हें ओके जी डेंगू का बड़ा मसला हुआ है, तो डेंगू पे कोई प्रोजेक्ट बना के दें। उन्हें पता है जी सॉइल साइंस कह रहा हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डॉक्टर वसीम अकरम इस पे काम कर रहा है, वो उससे डायरेक्ट रब्ता करेंगे, उसे कहेंगे वसीम साहब जल्दी नाल 2-3 प्रपोजल्स बना दो। सो इस तरह से भी होता है। ओके, सो आपके CV से और आपकी रेपुटेशन से वो जो इवैल्यूएटर होगा वो आपके यहाँ पे नंबर लगाएगा 15 में से। फिर टू व्हाट एक्सटेंट विल द इंस्टीट्यूशन इंक्रीज इट्स कैपेबिलिटी टू परफॉर्म फॉलो अप और सिमिलर रिसर्च ऑन नेशनल और रीजनल प्रॉब्लम्स। ये वो बताएगा कि इंस्टीट्यूशन कितना इस प्रोजेक्ट के करने से कितनी उसकी एबिलिटी या कैपेबिलिटी इंप्रूव होगी, और उसमें वो नंबर लगाएगा। और फिर अगला उनका पॉइंट है मल्टी डिसिप्लिनरी एंड क्रॉस इंस्टीट्यूट, कि क्या उसने किसी के साथ कोलैबोरेशन किया है। इज द प्रोजेक्ट मल्टी डिसिप्लिनरी, 15 में से उसके नंबर लगाए जाएंगे। आजकल ज़्यादा फोकस किया जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च पे, उसको लाइक किया जाता है, लोग कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी प्रपोजल्स डेवलप करें। ओके, फिर होगा जी इज द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंस्टीट्यूशनल, क्या जो इज द प्रोजेक्ट क्रॉस इंस्टीट्यूशनल,
क्या प्रोजेक्ट दो इंस्टीट्यूट्स के दरमियान है या एक ही है, सो विद इन द कंट्री है या आउटसाइड द कंट्री है, उस हिसाब से आपने नंबर लगाने हैं और उसके रिमार्क्स हैं, ठीक है। सो इस तरह से इस कंपोनेंट के 150 टोटल जो ए बी सी जो और डी, ये 4 कंपोनेंट्स की इवैल्यूएशन के बाद टोटल 150 नंबर बनते हैं। उन 150 में से अगर कम से कम 80 नंबर हों तो आप क्वालिफाई करते हैं। अगर आपके, ये पार का क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ, अगर 80 से कम हो तो आपका प्रोजेक्ट अगली स्टेज पे नहीं जाता है। अगर कम से कम 80 नंबर हों तो वो ऐसे 3 रिव्यूअर्स को आपकी प्रपोजल भेजते हैं, 3 रिव्यूअर्स उसकी वैल्यूएशन करके अपने नंबर लगाते हैं, वो फिर एक उनकी एग्जेक्टिव कमेटी होती है, उसमें प्रेजेंट किए जाते हैं कि जी इसने इसको इतने नंबर दिए हैं, इसने इतने दिए हैं, इसने इतने दिए हैं। उसकी अगर 3 में से कम 2 बंदे उसको 80 या 80 से ज़्यादा नंबर दे दें तो उस प्रपोजल को आगे लेके जाया जाता है। अगर 2 बंदे 80 से कम दे दें तो फिर उसको आगे नहीं लेके जाते, प्रपोजल को वहीं से वो टर्न डाउन कर दी जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द प्रपोजल। अब आपने काम कर लिया, ये साइन वगैरह करके आपने सबमिट कर दिया, आपने प्रोजेक्ट किया, करके उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी, दैट्स इट? नो, दैट्स नॉट ऑल। अब उसको, ऐसे तो बहुत सारे थीसिस भी होते हैं, कि काम हुआ हो के उसको रख दिया, नहीं। एक प्रोजेक्ट आपने किया, उसके बाद उसको किसी लॉजिकल एंड पॉइंट पे लेके जाना चाहिए। उसको अगर आपने किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढा है तो फिर उसको अप्लाई भी तो करना चाहिए ना। अगर आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप की है तो उस प्रोडक्ट को कमर्शलाइज भी तो करना चाहिए। अगर बना के वहीं रख लिया लैब में तो फिर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपने काम किया है उसको कमर्शलाइज भी करें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कमर्शलाइज द रिसर्च दैट इज़ बीइंग डन एट यूनिवर्सिटीज़। क्यों वो ज़रूरी है? इट हैज़ ए कम्युनिटी इम्पैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पीपल। जो प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करेंगे दैट विल बी अल्टीमेटली in one or the other way will be improving the quality of life of the people. That will be having collaborations and partnerships कि उससे आप बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूट्स के साथ आपकी collaboration develop होगी, उनके साथ आपकी interaction develop होगी. So that can facilitate research collaborations between universities, funding agencies and industries particularly. आपने से फॉर एग्जाम्पल लैब में काम करके एक डाई डेवलप कर ली है, ये जो टेक्सटाइल में यूज़ करते हैं, तो फिर उसको डेवलप करके लैब में ना रख लें। उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रब्ता करें, उन्हें कहें जनाब ये मैंने डाई बनाई है, इसको अब आप कमर्शलाइज करें, आप मुझसे लें और इसको यूज़ करें। हर यूनिवर्सिटी का फिर एक अपना सेटअप है कि वो कैसे उसको दे सकता है, और ये इट फॉल्स वेल विद इन द परव्यू ऑफ ऑरिक कि वो इसको फिर कमर्शलाइज करे। एंड आल्सो इट ऑफ कोर्स जो आपने रिसर्च की है that can ultimately, if you commercialize that can increase the revenue through commercialization of research by generating significant revenue both for the university as well as the inventor of the research. अब आपने उसको कमर्शलाइज करना है। चलें, आप कन्विंस हो गए कि जनाब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उनकी रिपोर्ट दे दी, अब जो आउटपुट आई उसको मैंने कमर्शलाइज करना है। कमर्शलाइज करने के लिए आपको क्या करना है? आपको उसके लिए ये करना है कि उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजर्व करने हैं अपने नाम पे। अगर आपने डाई बनाई है आज, तो उस डाई का अपने नाम पे पेटेंट लेना है, उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिजर्व करने हैं। ये ना हो कि बनाई मैंने है मेहनत करके, कल को कोई और बंदा ऐसे ही उसका जाली नाम से वही फार्मूला बना के तो बेचता रहे। सो उसके जब आपने इसको कमर्शलाइज करना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसके रिजर्व करने होंगे। फिर आप उसको उसका पेटेंट फाइल करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली अगर आप उसको कमर्शलाइज कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या बंदे के थ्रू, तो उसको उसका लाइसेंस देना है। ये स्टेप्स आपने करने हैं और ये आपके ऑरी के थ्रू होंगे, वो ये सारे काम करेगा। अब ये ख़ास तौर पे ये जो पेटेंट फाइलिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन
अब इसमें जो ये मैंने स्पेशल स्लाइड रखी है इस पर्पज़ के लिए, मोस्ट ऑफ़ यू आर यंग पीपल, तो यंग पीपल आजकल एक रेस लगी हुई है पेपर्स के पीछे कि पेपर छपने चाहिए, इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल में ज़्यादा से ज़्यादा पेपर होने चाहिए। यस, दैट्स गुड, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा काम कर लिया है जो वाकई इनोवेटिव है, जो आप समझते हैं नई चीज़ है कोई, तो फॉर गॉड सेक उसको पब्लिश ना करें, उसको डिस्क्लोज ना करें बिफोर अप्लाइंग पेटेंट। पहले उसका पेटेंट अप्लाई करें। जब आप एक दफ़ा पेटेंट अप्लाई कर देंगे, उसके बाद जितने मर्जी पेपर लिखते रहें उस पर, तो उसके राइट्स आपके रिजर्व हो जाएंगे। जब आप पेटेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो जो आईपीओ वाले होते हैं वो फ़ौरन अपने डेटाबेस में चेक करेंगे कि ये जो काम है ये पहले किसी ने पब्लिश तो नहीं किया। अगर फ़र्ज़ करें आपने पहले ही पेपर उस पर पब्लिश कर दिया हुआ है, तो वो देखेंगे, उसमें वो इंडिकेट हो जाएगा। वो आपके कहेंगे नहीं जनाब, ये तो आप डिस्क्लोज़ कर चुके हैं पहले से, ये तो कोई नई बात नहीं है, ये नहीं पेटेंट हो सकती, तो आपका पेटेंट नहीं होगा। लिहाजा ये लाजमी है कि पब्लिश करने से पहले उसका पेटेंट कर लें, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये वाकई इनोवेटिव काम है, ये वाकई कोई नई चीज़ बनाई है आपने, तो फिर उसको पहले पेटेंट के लिए अप्लाई करें, फिर पब्लिश करें उसको। इवन अब एक पेटेंट फाइनली ग्रांट होने में दैट मे टेक 2 to 3 years समटाइम्स इवन मोर देन दैट। तो उस पीरियड में अगर आपने पहले से अप्लाई कर दिया हुआ है तो वो सारा पीरियड, उसमें जितने मर्जी पेपर आप छापते रहें, वो कोई इशू नहीं होगा। वो डेट देखेंगे आपने पेटेंट कब सबमिट किया था, उस डेट से पहले की पब्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, बाद वाली हो सकती है। या दूसरा तरीका ये है कि ये भी एक खासा लेंथी प्रोसेस होता है पेटेंट राइट करना, इसके लिए बड़े लीगल एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं और आपको भी खासी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आपने ही बतानी है ना। तो उसके लिए ये है कि आप 12 महीने का प्रोविजनल पेटेंट कर सकते हैं। वो एक सफ़ा होता है, सिर्फ एक सफ़ा, सिर्फ वो लिख के वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो दे के उनको आप प्रोविजनल पेटेंट ले लेते हैं। उस एक 12 महीने के अंदर, एक साल के अंदर अंदर आप उसका डिटेल्ड पेटेंट डेवलप करके वो सबमिट कर लें। 12 महीने के लिए वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद आप डिटेल्ड पेटेंट दे दें। ये मैं कहना चाहता हूँ कि इन ए ग्लोबल इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड पेटेंट राइट्स कैन बी इसेंशियल फॉर कमर्शियल सक्सेस, ये लाजमी है। तो वर्ल्ड वाइड पेटेंट राइट्स विल बी लॉस्ट ड्यू टू पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एन इन्वेंशन बिफोर द पेटेंट एप्लीकेशन इज फाइल्ड, जो मैंने बात की है। अगर आपने वो कहीं पोस्टर डिस्प्ले कर दिया है, जैसे मैं यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, किसी कहीं पे प्रेजेंटेशन दे दी है उसकी, कहीं पे वो आइडियाज़ पिच कर दिए हैं, वहाँ पे आपने आइडिया पिच कर दिया है, और अगर वो डॉक्यूमेंट हो गया है तो वो फिर पेटेंटेबल नहीं रहेगा, वो पब्लिक डिस्क्लोजर हो गई है। ठीक है, अब क्या पब्लिक डिस्क्लोजर क्या हो सकती है? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पब्लिक डिस्क्लोजर? दैट मे बी पब्लिकेशन ऑफ ए रिसर्च पेपर, आप उसका पेपर पब्लिश कर दें, ए स्पीच और ए टॉक एट ए पब्लिक और ओपन मीटिंग, ए पोस्टर प्रेजेंटेशन, कोलैबोरेटिव रिसर्च आफ्टर ए डिस्कवरी करने के बाद अब किसी और के साथ मिलके आप उसको टेस्ट करने लग जाएं कि ये मैंने एक प्रोडक्ट बनाई है, आए इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज पब्लिक डिस्क्लोजर। अगर आपने पब्लिक डिस्क्लोजर कर दी तो फिर आप पेटेंट नहीं फाइल कर सकेंगे। इफ यू थिंक यू हैव ए पेटेंटेबल इन्वेंशन, थिंक क्या? डिले पब्लिक डिस्क्लोजर। Let your institutional intellectual property or technology transfer coordinator evaluate। अपने ऑरी को दें कि जी मैंने ये चीज़ बनाई है, इट इज़ देयर मॉरल एंड ऑफिशियल ड्यूटी कि वो उसको डिस्क्लोज ना करें, कॉन्फिडेंशियल रखते हुए उसको इवेल्यूएट करें इंस्टीट्यूट में, जैसे भी वो करना चाहें। जब वो कन्विंस हो जाएं कि हाँ जी ये ठीक है, वो आपको बताएंगे हाँ जी ये ठीक है जी आपकी, इसमें आप यहाँ ये चेंज करके इसका ठीक है पेटेंट अप्लाई कर लें। ओके, इफ़ पॉसिबल रिमूव डिस्क्लोजिंग मटेरियल बिफोर ए पब्लिक डिस्क्लोजर। इसमें से वो ख़ास चीज़ जो है, जैसे अभी मैंने बात की है कि जी वो बायो हर्बिसाइड डेवलप करना है तो बैक्टीरिया, मैंने बैक्टीरिया का नाम तो नहीं ना लिया।
सो ये मैंने अब उसमें थोड़ी सी डाली है इसलिए कि मैंने उसका पेटेंट अप्लाई किया हुआ है। आल तो अब मैं कर सकता हूँ उसका नाम डिस्क्लोज, लेकिन स्टिल मैंने नहीं नाम लिया टू बी केयरफुल। सो इस तरह से अगर आप कोई वाकई अपनी प्रपोज़ल से कोई नया काम कर लिया है तो एक पेटेंट ज़रूर फाइल करें। दैट इज़ ए रियल रिकग्निशन to your work, your novelty, your commitment, your dedication towards science. Thank you very much. सर क्वेश्चन तो नहीं है, बहुत अच्छा किया है, मैं सिंपली अप्रिशिएट करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। Thank you. लाए और अब यंग फैकल्टी है और सबको आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और हम नई यूनिवर्सिटी हैं रिलेटिवली, और हम प्रोजेक्ट सबमिशन की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी बातें बहुत अच्छी, बहुत ठीक है। थोड़ा सा मैं भी अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ। बजट की बात की है, वो मैंने ये देखा है कि जो मैक्सिमम लिमिट उन्होंने दी होती है उस पर कभी ना जाए। आप देखें कि मेरा काम कितना है और उसके मुताबिक करें, तो बाज़ बात ऐसे भी मुझे प्रोजेक्ट मिले कि यार ये इतना अच्छा काम है, बड़े रीजनेबल प्राइस है, बड़े रीजनेबल बजट है, तो ये ना करने। और गैंट चार्ट के हवाले से बड़ा आपने अच्छा किया, डेडलाइंस के हवाले से, और ये है कि अपने प्रोजेक्ट को टेलर करें उनकी रिक्वायरमेंट से। तो ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी चीज़ें हाईलाइट की। और ये जो बात कर रहे थे कि फिर लोग ढूंढते हैं कि एक टाइम आता है, मतलब अगर लोगों को पता है कि अच्छा डॉक्टर शवाल वाटर पे काम कर रहे हैं, तो वो एक फ्लड मैनेजमेंट पे मुझे ढूंढते, ऑस्ट्रेलिया से आ गए कि आप वाटर पे काम नहीं करें, ये कहते हैं कि आप वाटर पे आपका इतना काम है, आप कर लेंगे करें, तो सही है। अगर अमेरिका से डायरेक्ट में पा रहा है तो दूसरे तो वो पास का नहीं लिखना पड़ता है। तो थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन आप तशरीफ लाए और बड़ी खुशी हुई और बड़ी इंकरेजमेंट मिली है ये हमारी यंग फैकल्टी को। तो मैं क्वेश्चन कोई नहीं है, लेकिन मैं बस आपको अप्रिशिएट ही करना चाहता हूँ। थैंक यू जी। जी कोई क्वेश्चन? Sir, I have a question. Okay. So my name is Inanasa from CS department. Sir, I want to ask, can we apply for patent as an individual, or we can always go with it through some audit, like? Yes, you can apply individually, but even if you apply through ORIC, even then you will have your individual patent. ORIC का उसमें रोल कोई नहीं होगा सवाए फैसिलिटेट करने के आपको। Actually, I want to confirm that is it there any condition that we should come through ORIC, or we can individually, independently go for this procedure? No, it's not a condition, but it is a setup or a administrative setup हर ऑर्गेनाइजेशन का कि। और देखें मैंने कहा था कि इसमें बहुत सारी लीगैलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, उसकी लैंग्वेज बड़ी लीगल सी होती है। तो ऑरिक में ये एज्यूम किया जाता है कि वहाँ पे एक दो लोग ऐसे होंगे जो उसके एक्सपर्ट होंगे, जो आपको फैसिलिटेट करेंगे कि आप उसको उस हिसाब से लिख लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई लिखा है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है आपने, अब CS का बताया ना आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, अब आप उसको पेटेंट करवाना चाहती हैं तो आप ऑरिक वालों के पास जाएंगे। ऑरिक वालों के पास एक डेटाबेस होगा, वो इसका स्पेशल डेटाबेस होता है पेटेंट का, वो जो हमारा साइंटिफिक जर्नल्स का होता है वो नहीं होता, ये और होता है। तो वहाँ से वो चेक करेंगे, करके आपको बताएंगे आपका ये काम जो है ना ये फ़लाँ काम के साथ थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, आप ऐसे करें, इसको इस तरह से करके कर लें तो ये उससे डिफरेंट हो जाएगा, तो आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी, आप उस तरह से करें। और उसके बाद जो पेटेंट अप्लाई होगा वो आपके ही नाम से होगा। लेकिन ये है कि अब जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में ये है कि उसके जो पैसे होते हैं पेटेंट के, उसकी कुछ फ़ीस होती है, वो ऑरिक के थ्रू आप अगर करते हैं तो वो ऑरिक पे करता है।
आपको नहीं करना पड़ता। और इवन HEC में भी ये फैसिलिटी है कि अगर आप इंटरनेशनल पेटेंट करवाना चाहते हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होती है, तो उसके लिए फिर आप HEC को भी लिख सकते हैं, HEC के थ्रू भी उसको पेटेंट किया जा सकता है। Sir, another question. जी जी। Sir, overall A to Z presentation was very, mashallah, good. Thank you. But I always confused when we write about the proposals for grants and all these kind of things. तो CS department में ये activity throughout चल रही है पिछले साल से. Sir, but I am always looking for the parameters. What are the key parameters that we must focus? Like Gantt chart हो गया हमारा, या हमारा जो दूसरी जो आपने वो एक बोला था सर, वो मैं देखा हुआ है एक मिनट सर, माइलस्टोन मैट्रिक्स जी जी। जो अभी आपने डिस्कस किया था जी। सर, these are apparently two parameters जिनको अगर हम अच्छे से करें तो शायद हमारा प्रपोजल अच्छे से हो जाता है, लेकिन सर इसके अलावा कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हिडन पैरामीटर्स हैं जो इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट हमारे सामने नहीं होते, जिनके थ्रू हम ग्रांट को विन कर सकते हैं? नहीं, हिडन पैरामीटर्स कोई नहीं होते, यही हैं जो मैंने एक स्लाइड दी थी जिसमें मैंने कंपोनेंट लिखे थे कि ये चीज़ें हैं जो आपको लाजमी देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल वो था कि एक तो आपने उसकी समरी देनी है, प्रोजेक्ट डाइजेस्ट, उसको कोई भी नाम दे लें। उसके बाद आपने उसका ऑब्जेक्टिव या गोल्स बताने हैं कौन कौन से हैं, और वो हमने उसको एक्सप्लेन करते हुए कहा कि उसमें पूरा डिटेल से उसी में, इसमें भी आपने देखा कि उसी में उन्होंने डिफरेंट टॉपिक डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर पूछा हुआ था कि इसकी बेनिफिट्स क्या हैं, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, वो बताने हैं आपने। उसके बाद आपने मेथडोलॉजी बतानी है उसकी, ठीक है, और आपने एक्टिविटी प्लान बताना है कि आप किस किस तरह से उसको करेंगे, ठीक है, और बजट एस्टिमेट्स देने हैं। यही मेजर चीज़ें होती हैं, उसके हिडन चीज़ कोई नहीं होती। हिडन चीज़ यही होती है जो मलिक साहब ने बताई है कि ख़ास तौर पे पहली प्रपोज़ल में आपको थोड़े बहुत इधर उधर के, वो एक अलहदा साइंस है कि वो आपको थोड़ी बहुत मतलब यस ऑफ कोर्स ये अब हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। एक तो वो जैसे जर्नल्स में कहते हैं गेस्ट ऑथरशिप होती है, ऐसे ही इसमें आपको शुरू में अभी हो सकता है कि आपकी प्रपोज़ल इतनी सेल ना हो तो आप किसी सीनियर को नाम साथ डालें, उसको PI बनाएं, खुद को PI बने, प्रोजेक्ट उसका नाम सेल होगा PI का, आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद सीनियर के तौर पे प्रपोज़ल लिखेंगे, लोग आपका नाम डालेंगे, तो ये ऐसे ही है। तो फिर उसको पूछना पड़ता है लोगों को, रेलेवेंट लोगों से, वो जी मैंने प्रपोज़ल सबमिट की थी, क्या बना उसका। कोई अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल अशफाक साहब के पास आ गई है तो आप मलिक साहब को कह सकते हैं, ज़रा सर को कह देंगे उसका क्या बना है। सो ये ही हिडन चीज़ें हैं और हिडन चीज़ कोई नहीं है, यही चीज़ें हैं जो आपने देनी है। सर मेरा क्वेश्चन है, जी NRPU के जो प्रोजेक्ट आते हैं आज से 2.5 साल पहले आए थे लेकिन अब नहीं आ रहे। जी, वो उनका कोई फंडिंग का इशू है। अभी वैसे पुराने भी अगर वो कर लें तो वो भी बहुत है, उनकी भी उनके जो पैसे थे वो पूरी इंस्टॉलमेंट्स रिलीज़ नहीं हुई उनके। आपको पता ही है कि अब तो ये नेशनल इशू है कि वो पैसे ही गवर्नमेंट ने कट लगा दिया है, तो उन्होंने कहाँ से देने हैं पैसे। मेरे ख्याल है आजकल जो हालात है ना, तो आप कोशिश करें कि ओपन हो जाए इंटरनेशनल या इंडस्ट्री या जैसे कोई NGO है, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की तरफ देखना जो है ना, आजकल तो जो Yes. अनलेस के पास उनके पास तो मजबूरन ये जो फंडिंग एजेंसी है ना, तो वो उनके थ्रू आ जाए, और उनको क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनकी जॉब खत्म हो जाएगी अगर ये बिल्कुल सिलसिला खत्म, वो ये नहीं चाहेंगे, ठीक है। बाकी